Good morning, Assalamu alaikum. Today we will discuss summer pack of computer science grade 8th. Write down the definition of the following. The first term is trash. Trash typically refers to a storage location where deleted files and folders are temporarily stored before they are permanently deleted. The trash is also known as recycle bin. Allow user to recover file they may have accidentally deleted. The next definition is about hyperlink. Hyperlink are typically displayed as text or image that are highlighted, underlined, or formatted in a distinct way to indicate their clickable nature. When the user clicks on it, hyperlink, it triggers an action that takes them to the linked location, which could be another web page, a file, an email address, or various other resources. Then what do you know about swap? Swap means interchanging the values of two quantities. Swap means interchange the value of two quantities. For example, like we have the value of x and the value of y. We can easily swap the value of, we can easily assign the value of x to y and similarly the value of y to x. The next definition is about hub. As we all know, hub is a device that connects multiple computers or network devices together, allowing them to communicate with each other. Hub operate at physical layer of the network and simply forward all incoming data to the connected device. The next definition is about shape twin. Shape twin can be used to create various visual effects such as morphing one object into another, transforming a simple shape into a complex shape. शेप ट्विन को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट की अगर लेट्स सपोज अगर सर्कुलर शेप है तो उसको वन शेप से अनदर शेप में हम उसको मूव कर सकें. The next term is about string. A string is a data type in computer programming that represents a sequence of characters. It is used to store and manipulate textual data such as words, sentences, or even paragraph. In most programming languages, a string is typically enclosed in double quotes to distinguish it from other data type. Then the next term is about suffix. Suffix is a sequence of characters that occur to the end of another. For example, the word coming. The ing is known as the suffix of the word coming. Then the next term is about array. An array is a data structure that allows you to store multiple values of the same data type in a sequential manner. It provides a way to efficiently organize and access a collection of related elements. Then the next term is about concatenate. Concatenate means जब हम two variables को आपस में combine करते हैं उस process को हम कहते हैं concatenation. In case of two string, paste second string to the end of first string. Next term is about star topology. All the nodes are connected to a central hub or switch. If a cable connecting the computer and the hub or switch gets faulty, only the particular node goes down, but other computers still work. Then what do you know about barcode? Barcode are used to automatic product identification by a computer. They are rectangular pattern of lines of varying width and size spaces, specifying character 0 to 9, from 0 to 9 character. Then what do you know about flowchart? As we all know, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. ठीक है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करें. एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जब मूव करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम इज नॉन एज फ्लो चार्ट. Then the next term is about Dreamweaver. Dreamweaver is a editor which involves many tags, one after another and sometimes nested, is a software owned by Adobe. The kind of editor used to create web pages, and this is known as what you see and what you get editor. Means कि आप जो चीज़ वहाँ पे देखते हो स्क्रीन पे, आप जो चीज़ भी देखेंगे ड्रीमवीवर की, आप इजीली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी स्टेज पे. The algorithm. Algorithm is a series of steps which, when followed faithfully, will lead to solution of some problem. किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करें. ठीक है, एल्गोरिदम इजी स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं. Then World Wide Web is a collection of documents that are written and encoded using the hyperlink markup language. With the use of relatively small piece of software called a browser, a user can ask for these documents and display them on the user local computer. Then the next term is
Page number 24, right answer of the following question. The first question, what does ALU perform? ALU क्या एक्शन परफॉर्म करता है, क्या फीचर परफॉर्म करता है? ALU आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ALU को हम यूज करते हैं। ALU is a fundamental component of computer. In central processing unit, it is responsible for performing arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, as well as logical operation and or NOT gates. Then the next question, describe the advantages of e-commerce. E-commerce can be cost effective for business. E-commerce platform often requires less investment to set up and maintain compared to physical store. They save more time and fuel for vehicles. We can compare prices easily. Then the next question, convert 12 into binary. 12 वैल्यू आपके पास गिवन है, डेसिमल में आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, आपके पास रिमाइनिंग कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे। 2 1 2, यहाँ पे 3 था, दैट मीन्स कि आपके पास 1 वैल्यू यहाँ पे स्पेयर है, तो आप यहाँ पे मेंशन इसको सेपरेटली कर लेंगे। देन इसको डाउनवर्ड अब आपने यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना है 1 1 0 0 1 1 0 0। तो 12 का आंसर आपके पास बाइनरी में ही आया 1 1 0 0, और इसकी बेस 2 होगी क्योंकि हमने ये बाइनरी में वैल्यूएशन की है। बाइनरी आपके पास 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। RAM is a volatile, which means data is lost. ROM is non-volatile. RAM is a temporary storage, whereas ROM is permanent storage. RAM is fast as compared to ROM. RAM is more expensive as compared to ROM. Okay, remaining 3 parts जो है आप लोगों ने खुद इस तरह से डिफरेंसेस करके फिल करने हैं। Then the next question, convert 110 into decimal. आपके पास वैल्यू गिवन है, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप हर वैल्यू को लेट्स सपोज 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें प्लस ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लास्ट से पावर देना स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3। फिर इन पावर को आप सॉल्व आउट करेंगे। 1 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 0 मीन्स 1। ओके, देन आप नेक्स्ट जो सिंपल अर्थमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है वो परफॉर्म करेंगे। 8 इंटू 1 8 प्लस 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0। देन सिंपल एडिशन परफॉर्म हो रही है, आप ऐड करेंगे नंबर्स को और आपके पास रिजल्ट आएगा 14, और इसकी बेस 10 होगी क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, और डेसिमल की जो होती है वो बेस जो होती है आपको ऑलरेडी पता है कि डेसिमल की बेस 10 होती है। Then the next question, write a program to take 10 numbers as input and print their average. 10 numbers आपने इनपुट लेने और आपने उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। रिमार्क्स में आप ये लिखेंगे कैलकुलेट एवरेज ऑफ 10 मार्क्स। 10 नंबर्स का आपने एवरेज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिम को आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिम जो है वो अरे होती है आपकी, ठीक है। अरे का मतलब ये कि आपको जब भी नंबर्स चाहिए होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर्स चाहिए होते हैं जिनको आपने अपनी मेमोरी पे एलोकेट करना होता है या असाइन करना होता है, या आपको कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है, तो फिर आप अरे को डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। अरे का वर्ड, अरे की डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिम का वर्ड लिखते हैं, फिर आपका वेरिएबल नेम आता है, ठीक है, जो आपने अपनी अरे का नेम रखना होता है। उसके बाद आपकी अरे की लेंथ आती है, ठीक है। डिम नम अरे मीन्स हमारी अरे का नेम जो है वो नम अरे है, ठीक है। 10 मीन्स आपकी लेंथ 10 थी, 10 नंबर्स थे, 10 आपकी लेंथ होगी। देन हमने इसमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज सम डिवाइड बाय 10 नंबर से 10 से डिवाइड करेंगे। सम को हम इनिशियली 0 कर लेंगे कि सम में पहले से कोई वैल्यू ना पड़ी हुई हो, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, देखो हमने जब अरे अप्लाई की है तो इस अरे को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरे को 1 से स्टार्ट करेंगे, देन अरे को 10 तक एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम अरे की हर लोकेशन पे कोई वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। अरे की यहाँ पे इंटर द नंबर, अरे के फर्स्ट लोकेशन पे आप वैल्यू पुट करेंगे, उसको सम में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑफ आई मीन्स अरे 2, यहाँ पे आई 2 हो जाएगा। फिर आप आई 3, आई 4, आई 5, आई 6, 7, 8, 9 अप टू 10, ठीक है। 10 तक आप अरे को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास सम कैलकुलेट हो जाएगा, आपने सम को डिवाइड करना है 10 पे। 10 पे इसलिए हमने डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर जो थे वो 10 है। देन आपने उसका आउटपुट प्रिंट करवाना है। प्रिंट द एवरेज इज एवीजी। एवीजी में हमने इसलिए प्रिंट करवाया क्योंकि हमारे पास एवरेज जो है उसका वेरिएबल है।
एबीजी वेरिएबल है। देन लास्ट में आपने एंड का कीवर्ड लिखना है, क्योंकि आप किसी भी प्रोग्राम को एंड जो है एंड के कीवर्ड से करते हैं। हाउ इज़ द क्यूरी विजिट यूज ऑन अ टेबल? क्यूरी विजिट को टेबल पे यूज़ करने के लिए सिंपल स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्यूरी विजिट बटन पे क्लिक करना है। देन क्यूरी ग्रुप क्रिएट टैब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू क्यूरी का ऑप्शन अपीयर होगा। न्यू क्यूरी पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने सिंपल क्यूरी विजिट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल क्यूरी विजिट को आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका क्यूरी विजिट जो है वो इजीली आपके टेबल पे इंसर्ट हो जाएगा। देन राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ वेब शॉपिंग। द फर्स्ट वन इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स कि आप वेब शॉपिंग जब घर से कर रहे हो तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, मतलब आप कहीं पे आपको फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी मीन्स कि आप समटाइम ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन स्टोर्स में देखते हो आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट आप जब फिजिकली जाके देखते हो तो आपको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, आपको मल्टीपल स्टोर्स में विजिट करना पड़ता है। देन वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि आपके पास ऑनलाइन में प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है कि आप इजीली वहाँ से चीज़ जो है वो देख रहे हो, वहाँ से गेट कर रहे हो, रिगार्डलेस कि आप खुद विजिट करो और आपको समटाइम एक स्टोर पे नहीं मिलती है, आपको मल्टीपल स्टोर विजिट करना पड़ता है, वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। Then fill in the blank with the correct answer from the box. Some may be used more than once or not at all. आपके पास वर्ड्स गिवन है, इन गिवन वर्ड्स को आपने पुट करना है इन ब्लैंक्स में। ठीक है, आपके पास 7 ब्लैंक्स गिवन है, इन वर्ड्स को आपने ब्लैंक्स में पुट करना है। द फर्स्ट वन इज आई कनेक्ट कंप्यूटर एंड अलाउ देम टू टॉक टू ईच अदर। कनेक्ट मीन्स पावर सप्लाई। ठीक है, कनेक्ट का वर्ड आपको इंडिकेट करेगा कि ये पावर सप्लाई से आप कनेक्ट करते हैं। देन द नेक्स्ट टर्म आई वेक अप द कंप्यूटर एंड रिमाइंड इट व्हाट टू डू। ठीक है, रिमाइंड मीन्स कि आपके जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसको वेकअप करता है और उसको इंडिकेट करता है, उसको ऑपरेशनल करता है। ठीक है, उसको परफॉर्मेंस में लाता है आपका सिस्टम। देन थर्ड, आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन मीन्स सीपीयू, ये तो बहुत बेसिक है। द फोर्थ टर्म, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन माई मैग्नेटिक सिलेंडर। ठीक है, मैग्नेटिक का वर्ड से आपको पता है कि ये हार्ड ड्राइव है। इसी तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी सॉल्व करते हैं इनके, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ हिंट आपके पास गिवन होगी। जिस तरह से आपके पास सर्किट बोर्ड है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मदर बोर्ड है। ठीक है, आई हैंडल ग्राफिक्स है तो दैट मीन्स कि वीडियो कार्ड होंगे। आई एम द टाइप ऑफ पोर्ट। ठीक है, पोर्ट और फ्लैश कार्ड की बात है तो आपको पता है कि ये यूएसबी की बात है। Then next part, search for 5 terms related to HTML in the grid given below. ठीक है, आपके पास ये words given है। ठीक है, hints आपके पास given है। फर्स्ट वर्ड है बैकग्राउंड, नेस्टिंग, एट्रीब्यूट, ग्राफिक्स, ब्राउजर। इन वर्ड्स को आपने इस पजल में फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड, द नेक्स्ट वर्ड नेस्टिंग। इस तरह से रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपने इसमें फाइंड आउट करने हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो भी इस तरह की है, फाइंड दीज वर्ड्स इन द लेटर ग्रिड बिलो। वर्ड आपके पास गिवन है, इन वर्ड को आपने फाइंड आउट करना है, जैसे यूट्यूब, अपलोड, न्यूज़ ग्रुप, वेब फीड, स्टोरेज। Connect the computer by drawing lines so that each computer is connected to central hub using a ruler. Measure the total length of the line drawn. First of all, आपने सारे कंप्यूटर को मेंशन करना है कि PC1, PC2, PC3, PC4 एंड PC5 एंड दिस वन इज़ योर सेंट्रल हब। देन आपने रूलर की मदद से आपने मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, PC1 से लेके सेंट्रल हब का डिस्टेंस। ठीक है, थ्रू रूलर। देन PC2 का डिस्टेंस, PC3 का डिस्टेंस, PC4 एंड PC5, हर डिस्टेंस को आपने इंडिविजुअली यहाँ पे मेंशन करना है। फर्स्ट पार्ट लिखे PC1 और इसका सेंट्रल हब से डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आपने मेजरमेंट अपनी लिखनी है। ठीक है, PC2 की, PC3, PC4 एंड PC5। ओके, जब आप इंडिविजुअली मेजरमेंट्स लिख लेंगे उसके बाद आपने इसकी टोटल लेंथ मालूम करें। तो टोटल लेंथ मालूम करने के लिए आप उन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को ऐड करके आप टोटल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी, लेबल एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग विंडो। आपके पास एक विंडो गिवन है। ठीक है, इस विंडो में आपको, ये ड्रीम व्यूवर की विंडो है, इस विंडो में आपको कुछ लेबल की गई हैं चीज़ें। ठीक है, उन लेबल पार्ट्स के आपने एक तो नेम मेंशन करने हैं, सेकेंडली आपने उनकी डिस्क्राइब करने हैं कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्टेज। ठीक है, स्टेज आपका वो स्पेस एरिया होता है जहाँ पे आप फ्लैश एनिमेशन क्रिएट करते हैं। देन टाइमलाइन कंटेंट करता है आपके इमेजेस और अदर पार्ट्स ऑफ द एनिमेशन। देन प्रॉपर्टीज़ पैनल, जहाँ पे आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से साइजिंग कर सकते हैं, आप एनिमेशन के डिफरेंट फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। देन लाइब्रेरी में कुछ आपकी फाइल्स पड़ी हुई होती है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी एनिमेशन को इन्हांस करने के लिए, एनिमेशन में डिफरेंट फीचर्स अप्लाई करने के लिए। देन टूल पैनल में आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी ड्राइंग
इजीली बना सकते हैं। देन द नेक्स्ट, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। द फर्स्ट वन इज MAR। M stands for memory, A stands for address, R stands for register. MDR memory data register. SQR structured query reporter. देन GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बाकी पार्ट कुछ आपको पता है, कुछ आपने फाइंड आउट करने हैं। HTML JPEG आपकी इमेज की एक्सटेंशन होती है। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। देन व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये आपका ड्रीम वीवर का एडिटर है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ड्रीम वीवर में भी कि इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ वहाँ पे देख रहे हो ड्रीम वीवर पे, आप इजीली गेट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आपने इन सब की फुल फॉर्म लिखनी है और काइंडली स्पेलिंग को इंश्योर कीजिएगा कि स्पेलिंग आपकी एक्यूरेट हो। देन मैच द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड देयर प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग। आपके पास पर्पस गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, आपने इन पर्पस को रीड आउट करना है और इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ ABC। आपने ABC की लेंथ, आपने ABC को टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। देन रीड 3 नंबर्स। रीड का मतलब है कि आप कोई इनपुट ले रहे हैं। देन अगर बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम की बात करें तो हम बिगिनिंग में स्टार्ट का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट की बात हो, इस तरह से रिमेनिंग पार्ट जो है आपने करने। लूप का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जो आपकी रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही है। स्टार्ट का तो आपको पता है कि वो बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। प्रोसेस मीन्स कि आपको कोई फॉर्मूलेट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। इनपुट मतलब आपकी कोई जो इनपुट आपकी वैल्यू, आपको कोई वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। आप किसी चीज़ को कोई इनपुट करवा रहे हैं। स्टॉप मीन्स कि आपका प्रोग्राम सॉल्व आउट हो गया है या आप एंडिंग पे पहुंच गए हैं। डिसीजन मीन्स कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। फाइंड इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, ठीक है। फाइंड आउट करना कि नंबर ग्रेटर है या लेस है, वो आप डिसीजन ले रहे होते हैं। आउटपुट मीन्स कि आपका सब कुछ सॉल्व हो गया, अब आपने प्रिंट करना है अपना रिजल्ट, आपने टोटल प्रिंट करना है। देन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, कि इसमें आपको क्रॉसवर्ड और डायगोनल कुछ चीज़ें गिवन है, आपने इन स्टेप्स को यहाँ से रीड करके इनको सॉल्व आउट करना है। आई एम अ रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट, व्हाट डू आई रिप्रेजेंट, ठीक है। आपको पता है कि रेक्टेंगल की शेप जो होती है वो प्रोसेस की होती है। देन सेकेंड, व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट टू शो अ डिसीजन मेकिंग स्टेप, यू कैन यूज दिस बॉक्स। अच्छा, डिसीजन के लिए यू ऑल नो कि डायमंड शेप हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपने रिमेनिंग क्वेश्चन रीड करने और यहाँ पे उनको फिल करना है, ठीक है। कुछ मैंने आपको हिंट प्रोवाइड कर दिए, इस तरह से आपने बाकी रिमेनिंग पार्ट भी इसके सॉल्व करने हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्लो चार्ट गिव्स द स्टेप्स फॉलोड व्हेन टेकिंग अटेंडेंस इन अ क्लास, 3 एरो एंड अ लूप आर मिसिंग, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्या ड्रॉ द 3 मिसिंग एरोज एंड लूप एट द करेक्ट प्लेस, ठीक है। आपने मिसिंग एरोज मार्क करना है। सेकेंडली आपने लूप की कंडीशन बतानी है कि कहाँ पे लूप यस होगा, कहाँ पे नो होगा। फर्स्ट एरो स्टार्ट से दिस वन एंड नेक्स्ट की शेप ये होगी, और नेक्स्ट जो मिसिंग इसमें है आपने खुद बताना। आपको पता है कि हर सिंबल को अटैच करने के लिए हम एरो यूज़ करते हैं। देन स्टार्ट का कीवर्ड कॉल आउट नेम, आपने नेम कॉल आउट किए, अगर तो आप पर्सन ने आपका नेम सुन लिया दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट है, अगर उस पर्सन ने आपका नाम नहीं सुना दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट एब्सेंट है, ठीक है। तो यस के पार्ट में आप प्रेजेंट होंगे, नो के पार्ट में आप एब्सेंट होंगे। इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि वो लास्ट नेम है, ठीक है, कंडीशन है ये कि अगर तो वो लास्ट नेम है, ठीक है, तो यस उसको एंड कर दो अपने प्रोग्राम को। अदरवाइज अगर वो लास्ट नेम नहीं है तो फिर आप दोबारा से अपवर्ड मूव करेंगे, दोबारा से अपनी कंडीशन, अपना जो नेम है वो कॉल आउट करेंगे, ठीक है। जब तक आपका ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, आपका लास्ट नेम नहीं आया, तब तक आप इस फ्लो चार्ट को एंड नहीं कर सकते। राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ आपके पास प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इनका पर्पस लिखना है। इफ़ देन, इफ़ को हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जब हमें सिंपल जो स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। इफ़ द कंडीशन स्टैंड्स ट्रू देन द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फॉलोइंग इट, एंड इफ द कंडीशन स्टैंड्स फॉल्स द प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आपको कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगा। फॉर नेक्स्ट, this loop is used to execute a statement or set of statement for a specific number of time. It uses a counter variable which is increment or decrement with each repetition of loop, ठीक है।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉर का कीवर्ड आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट। नेक्स्ट ऑफ आई मीन्स कि आई की सेकंड वैल्यू, आई फर्स्ट फॉर 1 था, देन 2 3 4 अप टू 100 तक एग्जीक्यूट करेंगे। देन व्हाइल व्हेन दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन बीइंग चेक्ड स्टैंड्स ट्रू। ठीक है, व्हाइल आपका तब तक एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी। जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो आपका व्हाइल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। If then else, if the condition stands true, statement following if gets executed, but if the condition stands false, statement following else will execute it। ठीक है, अगर आपका if का पार्ट ट्रू हुआ दैट मीन्स कि आपकी if की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर आपका else का पार्ट ट्रू हुआ दैट मीन्स कि आप else का पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट डाउन द स्टेप्स टू लॉग इन याहू मेल। ठीक है, आपने याहू मेल पे लॉग इन करना है, आपको स्टेप्स राइट डाउन करने हैं। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स गिवन है, ठीक है, ये साइन इन का डायलॉग बॉक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है। ठीक है, आपने वहाँ पे गूगल ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे याहू मेल टाइप करना है। ठीक है, जब आप याहू मेल टाइप करेंगे तो आपके पास याहू का लिंक अपीयर होगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास एग्जैक्टली यही बॉक्स अपीयर होगा। इस बॉक्स में आपने अपनी याहू की आईडी प्लस अपना पासवर्ड टाइप करना है और ये इंश्योर कीजिएगा कि आपकी आईडी और पासवर्ड जो है वो दोनों मैच करते हो, मीन्स कि वो करेक्ट हो। ऐसा ना हो कि आप आईडी किसी और की दे रहे हो और पासवर्ड आप किसी और आईडी का दे रहे हो। ठीक है, अगर तो वो दोनों आईडी और पासवर्ड मैच करता होगा तो आपको ये लॉगिन कर देगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एरर जनरेट करेगा और आपको वो लॉगिन आईडी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, देन आपको फॉरगेट पासवर्ड और वो मल्टीपल स्टेप्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर तो आपको आईडी और पासवर्ड याद है तो फिर ये बिल्कुल बेसिक से सिंपल स्टेप है कि आपने आईडी और लॉगिन यहाँ पे एंटर करना है अपना आईडी और पासवर्ड, देन आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। इन्हीं सारे स्टेप्स को आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है स्टेप वाइज। Okay guys, and that's all about summer pack of computer science. If you guys have any query you can ask in the comment section. Okay, take care, Allah Hafiz.